اب سے کچھ ہی دیر میں کھیل شروع ہوگا، اب سے کچھ ہی دیر میں خبریں شروع ہوگی، اب سے کچھ ہی دیر میں وہ آئے گا۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اب سے کچھ ہی دیر میں، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ان a short while from now۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹینس پلس ان a short while from now۔ سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ سینٹینس کو سمجھنے کے لیے ٹینسز بہت اہم ہے، ضروری ہے۔ ان a short while from now یہ وہی کا وہی رہے گا which mean اب سے کچھ ہی دیر میں۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر میں کھیل شروع ہوگا۔ The game will start in a short while from now۔ The game will start in a short while from now۔ The game will start یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے which mean کھیل شروع ہوگا۔ In a short while from now mean اب سے کچھ ہی دیر میں۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، اب سے کچھ ہی دیر میں خبریں شروع ہوگی۔ The news will start in a short while from now۔ The news will start in a short while from now۔ The news will start یہ سینٹینس ہے which mean خبریں شروع ہوگی۔ In a short while from now mean اب سے کچھ ہی دیر میں۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، اب سے کچھ ہی دیر میں وہ آئے گا۔ He will come in a short while from now۔ He will come in a short while from now۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level۔ Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ One more example for better understanding۔ اب سے کچھ ہی دیر میں وہ لوگ جائیں گے۔ اب سے کچھ ہی دیر میں وہ لوگ جائیں گے۔ They will go in a short while from now۔ They will go in a short while from now۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اب سے کچھ ہی دیر میں کام شروع ہوگا۔ اب سے کچھ ہی دیر میں کام شروع ہوگا۔ سبسکرائب ٹو انگلش پی ایس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس۔ آپ نے مجھے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں دیا، وہ تنے مارنے کے سوا کچھ نہیں کرتی، آپ نے مجھے خوشیوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کے سوا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نتھنگ بٹ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ کے بعد یوز کرنا ہوگا آپ کو ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، اگر ہے تو اس کے بعد مین ورب، یہ بھی ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوتا رہے گا۔ مین ورب کے بعد نتھنگ بٹ وچ مین کے سوا یا کے علاوہ، نتھنگ بٹ کے بعد وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب، اور اس کے بعد ادر ورڈز اگر ہے تو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ آپ نے مجھے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں دیا، یعنی تم نے مجھے آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ You gave me nothing but tears۔ You gave me nothing but tears۔ gave یہ give کا سیکنڈ فارم ہے اور یہ سمپل پاسٹ ٹینس ہے۔ You gave me nothing but tears یعنی آپ نے مجھے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ You یہ سبجیکٹ ہے، me یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے۔ nothing but mean کے سوا یا کے علاوہ، tears mean آنسو۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، وہ تنے مارنے کے سوا کچھ نہیں کرتی، یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے۔ She does nothing but dance۔ She does nothing but dance۔ She یہ سبجیکٹ ہے، does یہ یہاں مین ورب ہے۔ nothing but mean کے سوا یا کے علاوہ، dance mean تنے مارنا۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، آپ نے مجھے خوشیوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ You gave me nothing but happiness۔ You gave me nothing but happiness۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level۔ Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ One more example for better understanding، اس نے بحث کے سوا کچھ نہیں کیا، یعنی اس نے بحث کے علاوہ کچھ نہیں کیا، بس صرف بحث کیا ہے۔ He did nothing but argue۔ He did
nothing but arguing, ये सब्जेक्ट है did, ये यहाँ मेन वर्ब है और ये सिंपल पास्ट टेंस है। nothing but मीन के सिवा या के अलावा, argue मीन बहस करना, ही did nothing but argue, उसने बहस के सिवा कुछ नहीं किया। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैंने चावल के सिवा कुछ नहीं खाया, मैंने चावल के सिवा कुछ नहीं खाया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। अगर हो सके तो उसकी मदद करना, अगर हो सके तो मुझसे मिलना, अगर हो सके तो उसके लिए इंतज़ार करना। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर हो सके तो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ पॉसिबल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इफ पॉसिबल प्लस कामा अगर लिखना है तो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इफ पॉसिबल ये वही का वही रहेगा, विच मीन अगर हो सके तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर हो सके तो उसकी मदद करना, इफ पॉसिबल हेल्प हर, इफ पॉसिबल हेल्प हर। अगर हो सके तो मुझसे मिलना, इफ पॉसिबल मीट मी, इफ पॉसिबल मीट मी। अगर हो सके तो उसके लिए इंतज़ार करना, इफ पॉसिबल वेट फॉर हर, इफ पॉसिबल वेट फॉर हर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर हो सके तो सब्जी ले आना, अगर हो सके तो सब्जी ले आना। इफ पॉसिबल गेट वेजिटेबल, इफ पॉसिबल गेट वेजिटेबल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर हो सके तो मुझे भूल जाना। खामखा तुम परेशान हो रहे हो, खामखा तुम वहाँ जा रहे हो, खामखा तुमने उसे डांट दिया, खामखा तुमने उसे रुला दिया। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं खामखा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अननेसेसरली। अननेसेसरली मीन खामखा यानी बिना ज़रूरत के, गैर ज़रूरी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस अननेसेसरली। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। खामखा तुम परेशान हो रहे हो, यू आर गेटिंग वरी unnecessarily, you are getting worried unnecessarily। खामखा तुम वहाँ जा रहे हो, you are going there unnecessarily। चलो मान लिया कि तुम मजबूर थे, चलो मान लिया कि तुम्हारे पास वक़्त कम है, चलो मान लिया कि तुमने मुझ पर एहसान किया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चलो मान लिया कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स एज्यूम दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट्स एज्यूम दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेट्स एज्यूम दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन चलो मान लिया कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चलो मान लिया कि तुम मजबूर थे, यानी चलो मान लेते हैं कि तुम मजबूर थे। लेट्स एज्यूम दैट यू वर कंपल्ड, लेट्स एज्यूम दैट यू वर कंपल्ड। यू वर कंपल्ड ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन तुम मजबूर थे। लेट्स एज्यूम दैट मीन चलो मान लिया कि। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलो मान लिया कि तुम्हारे पास वक़्त कम है, यानी हम मानते हैं कि तुम्हारे पास वक़्त कम है। लेट्स एज्यूम दैट यू हैव लेस टाइम, लेट्स एज्यूम दैट यू हैव लेस टाइम। जाकर दूध ले आओ, जाकर बताओ उसे, जाकर आराम कर लो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है गो प्लस एंड प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जाकर दूध ले आओ, गो एंड गेट मिल्क, गो एंड गेट मिल्क। जाकर बताओ उसे, गो एंड टेल हिम, गो एंड टेल हिम। जाकर आराम कर लो, जाकर आराम कर लो, गो एंड टेक रेस्ट,
गो एंड टेक रेस्ट। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जाकर पूछ लो, जाकर पूछ लो। गो एंड आस्क, गो एंड आस्क। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। जाकर देख लो, जाकर देख लो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनना। तुम्हारा दुख मेरा दुख है, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है, तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। योर प्लस नाउन प्लस एज प्लस माई प्लस नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारा दुख मेरा दुख है, यानी मैं तुम्हारा दुख अपना ही दुख समझता हूँ। योर सोरो इज माई सोरो, योर सोरो इज माई सोरो। योर मीन तुम्हारा, सोरो मीन दुख, माई मेरा, सोरो मीन दुख। योर सोरो इज माई सोरो, तुम्हारा दुख मेरा दुख है। तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। योर प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम। तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी है, तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी है। योर वॉच इज माई वॉच। शुक्र करो कि तुम वहाँ नहीं गए, शुक्र करो कि तुम्हारे पास पैसे हैं, शुक्र करो कि वो लोग जा रहे हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं शुक्र करो कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बी ग्रेटफुल दैट। आज ये कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। बी ग्रेटफुल दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बी ग्रेटफुल दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन शुक्र करो के या शुक्र मनाओ के। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। शुक्र करो कि तुम वहाँ नहीं गए, यानी शुक्र मनाओ कि तुम वहाँ नहीं गए। बी ग्रेटफुल दैट यू डिडंट गो देयर, बी ग्रेटफुल दैट यू डिडंट गो देयर। बी ग्रेटफुल दैट मीन शुक्र करो या शुक्र मनाओ। यू डिडंट गो देयर ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का, विच मीन तुम वहाँ नहीं गए। शुक्र करो कि तुम्हारे पास पैसे हैं। बी ग्रेटफुल दैट यू हैव मनी, बी ग्रेटफुल दैट यू हैव मनी। बी ग्रेटफुल दैट मीन शुक्र करो या शुक्र मनाओ। यू हैव मनी तुम्हारे पास पैसे हैं। शुक्र करो कि वो लोग जा रहे हैं। बी ग्रेटफुल दैट दे आर गोइंग। उसके पास खासा अच्छा पैसा है, आपके पास खासा अच्छा नॉलेज है, हमारे पास खासा अच्छा घर है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं खासा अच्छा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अफेयर बेट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेज या हेफ या हेड। हेज ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हेफ ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। हेड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस अफेयर बेट ऑफ प्लस नेम यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसके पास खासा अच्छा पैसा है, उसके पास खासा अच्छा पैसा है। ही हैज़ अ फेयर बेट ऑफ मनी, ही हैज़ अ फेयर बेट ऑफ मनी। आपके पास खासा अच्छा नॉलेज है। यू हैव अ फेयर बेट ऑफ नॉलेज, यू हैव अ फेयर बेट ऑफ नॉलेज। हमारे पास खासा अच्छा घर है। वी हैव अ फेयर बेट ऑफ होम। लगता तो नहीं है कि तुम डॉक्टर हो, लगता तो नहीं है कि वो आएगा, लगता तो नहीं है कि वो अच्छा खेलेगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लगता तो नहीं है कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट डजंट सीम दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट डजंट सीम दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट डजंट सीम दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन लगता तो नहीं है कि। डजंट ये डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। लगता तो नहीं है कि तुम डॉक्टर हो। इट डजंट सीम दैट यू आर अ डॉक्टर, इट डजंट सीम दैट यू आर अ डॉक्टर। लगता तो नहीं है कि वो आएगा। इट डजंट सीम दैट ही वुड कम, इट डजंट सीम दैट ही वुड कम। लगता तो नहीं है कि वो अच्छा खेलेगा। इट डजंट सीम दैट ही वुड प्ले वेल। तुम्हारी आवाज़ कम आ रही है, उसकी आवाज़ कम आ रही थी।
आवाज़ कम आ रही है क्या। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस वॉइस प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है प्लस लो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारी आवाज़ कम आ रही है, योर वॉइस इज लो, योर वॉइस इज लो, उसकी आवाज़ कम आ रही थी। हर वॉइस वाज लो, हर वॉइस वाज लो, आवाज़ कम आ रही है क्या। एम माई वॉइस लो। शादी लाहौर में होगा, मीटिंग कराची में होगा, क्रिकेट मैच पिशावर में होगा, उसका सालगिरह घर पे होगा। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन सब्जेक्ट प्लस विल प्लस टेक प्लेस प्लस अदर वर्ड्स। शादी लाहौर में होगा, द वेडिंग विल टेक प्लेस इन लाहौर, द वेडिंग विल टेक प्लेस इन लाहौर। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग कराची में होगा, द मीटिंग विल टेक प्लेस इन कराची, द मीटिंग विल टेक प्लेस इन कराची। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्रिकेट मैच पिशावर में होगा, द क्रिकेट मैच विल टेक प्लेस इन पिशावर। जो मैं कर रहा हूँ वो आसान नहीं है, जो वो करती है वो मुश्किल नहीं है, जो वो लोग करते हैं वो ठीक नहीं है, जो मैंने किया वो सही था। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जो यानी हर सेंटेंस में जो कॉमन सेम है, जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट। व्हाट मीन जो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है और ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है प्लस अदर वर्ड्स। जो मैं करता हूँ वो आसान नहीं है, व्हाट आई डू इज नॉट ईजी, व्हाट आई डू इज नॉट ईजी। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जो वो करती है वो मुश्किल नहीं है, व्हाट शी डज इज नॉट difficult, what she does is not difficult. One more example for better understanding, जो वो लोग करते हैं वो ठीक नहीं है, what they do is not right, what they do is not right. उसे सच बताकर तुमने सही किया, उसे डांट कर तुमने सही किया, उसके साथ रिश्ता तोड़कर तुमने सही किया, यहाँ आकर तुमने सही किया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुमने सही किया, यानी हर सेंटेंस में तुमने सही किया कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में यू डिड द राइट थिंग। यू डिड द राइट थिंग मीन तुमने सही किया। यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है और ये चेंज भी हो सकता है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन, यू did the right thing प्लस बाय प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर। उसे सच बताकर तुमने सही किया, you did the right thing by telling him the truth, you did the right thing by telling him the truth। बिल्कुल फार्मूले स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे डांट कर तुमने सही किया, you did the right thing by scolding him, You did the right thing by scolding him। उसके साथ रिश्ता तोड़कर तुमने सही किया, You did the right thing by breaking up with him, You did the right thing by breaking up with him। One more example, यहाँ आकर तुमने सही किया, You did the right thing by coming here। इसी बात पर चलो खेलते हैं, इसी बात पर चलो वहाँ जाते हैं, इसी बात पर चलो पिज़्ज़ा मंगवाते हैं, इसी बात पर चलो उससे मिलते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इसी बात पर, यानी हर सेंटेंस में इसी बात पर कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑन दैट नोट।
On that note मीन इसी बात पर आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. लेट मी एक्सप्लेन. On that note प्लस कामा प्लस सेंटेंस. इसी बात पर चलो खेलते हैं. On that note लेट्स प्ले. On that note let's play. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. इसी बात पर चलो वहाँ जाते हैं. On that note let's go there. On that note let's go there. इसी बात पर चलो पिज़्ज़ा मंगवाते हैं. On that note let's order a pizza. On that note let's order a pizza. One more example for better understanding. इसी बात पर चलो उससे मिलते हैं. On that note let's meet him. On that note let's meet him. वो लोग बैंक के चक्कर काटते काटते थक गए हैं. वो कोर्ट के चक्कर काटते काटते थक गया है. हम पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते काटते थक गए हैं. वो मैदान के चक्कर काटते काटते थक गया है. इन जुमलों में हम कह रहे हैं चक्कर काटते काटते, यानी हर सेंटेंस में चक्कर काटते काटते कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में. इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में मेकिंग राउंड्स ऑफ. मेकिंग राउंड्स ऑफ मीन चक्कर काटते काटते. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. लेट मी एक्सप्लेन. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है. प्लस टायर्ड ऑफ प्लस मेकिंग राउंड्स ऑफ प्लस नाउन. वो लोग बैंक के चक्कर काटते काटते थक गए हैं. दे आर टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द बैंक. दे आर टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द बैंक. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. वो कोर्ट के चक्कर काटते काटते थक गया है. ही इज टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द कोर्ट. ही इज टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द कोर्ट. हम पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते काटते थक गए हैं. वी आर टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द पुलिस स्टेशन. वी आर टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द पुलिस स्टेशन. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. वो मैदान के चक्कर काटते काटते थक गया है. ही इज टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द ग्राउंड. ये आसान लगता है, ये अजीब लगता है, ये अच्छा लगता है, ये मुश्किल लगता है. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है. लेट मी एक्सप्लेन. इट साउंड्स प्लस ऑब्जेक्ट. ये आसान लगता है, ये आसान लगता है. इट साउंड्स इजी. इट साउंड्स easy. Next example for better understanding. ये अजीब लगता है, ये अजीब लगता है. It sounds weird. It sounds weird. ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है. It sounds good. It sounds good. ये मुश्किल लगता है, ये मुश्किल लगता है. It sounds difficult. It sounds difficult. मैंने तो कब का उसे माफ किया. वो तो कब का चला गया. उसने तो कब का खाना पका लिया. हमने तो कब का खेली. इन जुमलों में हम कह रहे हैं कब का, यानी हर सेंटेंस में कब का कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में. इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में टू लॉन्ग अगो. टू लॉन्ग अगो मीन कब का. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. लेट मी एक्सप्लेन. सेंटेंस प्लस टू लॉन्ग अगो. मैंने तो कब का उसे माफ किया. आई फॉरगिव हिम टू लॉन्ग अगो. आई फॉरगिव हिम टू लॉन्ग अगो. वो तो कब का चला गया. ही वेंट टू लॉन्ग अगो. ही वेंट टू लॉन्ग अगो. उसने तो कब का खाना पका लिया. शी कुक्ड टू लॉन्ग अगो. शी कुक्ड टू लॉन्ग अगो. हमने तो कब का खेल लिया. वी प्लेड टू लॉन्ग अगो. वो अक्सर यहाँ आता है, वो अक्सर वहाँ जाता है. मैं अक्सर अपने स्कूल में क्रिकेट खेला करता था.
میرا بھائی اکثر سچ بولتا ہے۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اکثر، یعنی ہر سینٹینس میں اکثر کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آفٹن۔ آفٹن مین اکثر۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس آفٹن پلس مین ورب پلس ادر وہ اکثر یہاں آتا ہے۔ ہی آفٹن کمز ہیئر۔ ہی آفٹن کمز ہیئر۔ بالکل فارمولے کو ہم نے فالو کیا۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ وہ اکثر وہاں جاتا ہے۔ ہی آفٹن گوز دیئر۔ ہی often goes there۔ One more example for better understanding۔ میں اکثر اپنے اسکول میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا۔ I often used to play cricket in my school۔ I often used to play cricket in my school۔ میرا بھائی اکثر سچ بولتا ہے۔ My brother often tells the truth۔ تمہیں تو بس پیسوں کی پڑی ہے، اسے تو بس کہانی کی پڑی ہے، تمہیں تو بس سونے کی پڑی ہے۔ ایسی جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں دوسروں سے ضرور سنتے ہیں یا خود بولتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ all کے بعد آ جایا کرے گا سبجیکٹ۔ سبجیکٹ کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے کیا یہ مین ورب ہے اور یہ سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق چینج ہو بھی سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے about as اور about as کے بعد آ جایا کرے گا ناؤن یا ورب پلس ing۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ تمہیں تو بس پیسوں کی پڑی ہے، یعنی تمہیں تو بس پیسوں کی پڑی رہتی ہے، ہر وقت پیسوں کے پیچھے پڑے رہتے ہوں۔ all you care about is money۔ all you care about is money۔ money یہ ناؤن ہے۔ one more example for better understanding۔ اسے تو بس کھانے کی پڑی ہے۔ all he cares about is food۔ all he cares about is food۔ نیکسٹ ایگزامپل for better understanding۔ تمہیں تو بس سونے کی پڑی ہے، یعنی تمہیں تو بس سونے کی پڑی ہے، ہر وقت سونے کے پیچھے پڑی رہتی ہوں۔ all you care about is sleeping۔ all you care about is sleeping۔ sleeping یہ ورب پلس ing ہے جس کو جرن یا وربل ناؤن بھی کہا جاتا ہے۔ one more example for better understanding۔ اسے تو بس تم سے ملنے کی پڑی ہے۔ all she cares about is meeting you۔ all she cares about is meeting to you۔ one more example for better understanding۔ تمہیں تو بس کھیلنے کی پڑی ہے۔ all you care about is playing۔ all you care about is playing۔ one more example for better understanding۔ اسے تو بس چاول پکانے کی پڑی ہے۔ all she cares about is cooking rice۔ all she cares about is cooking what? rice۔ one more example for better understanding۔ تمہیں تو بس وہاں جانے کی پڑی ہے۔ all you care about is going there۔ all you care about is going there۔ one more example for better understanding۔ تمہیں تو بس برتن دھونے کی پڑی ہے۔ all you care about is washing dishes۔ all you care about is washing dishes۔ اسے تو بس تم سے ملنے کی پڑی ہے۔ اسے تو بس تم سے ملنے کی پڑی ہے۔ all she cares about is meeting to you۔ جس طرح آپ خیال رکھتے ہیں کوئی نہیں رکھ سکتا، جس طرح وہ پڑھاتا ہے کوئی نہیں پڑھا سکتا، جس طرح آپ مسکراتے ہو کوئی نہیں مسکرا سکتا۔ اس لیسن کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایسے فقرات انگریزی زبان میں بولے جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ان فقروں میں ہم کہہ رہے ہیں جس طرح۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں the way۔ the way mean جس طرح یا جس طریقے سے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں ایسے فقروں کے لیے۔ پہلے ہمیں یوز کرنا ہوگا the way۔ the way کے بعد آ جایا کرے گا سبجیکٹ۔
और सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करना है मेन वर्ब जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद आ जाया करेगा कामा, अगर लिखना है तो कामा के बाद हमें यूज़ करना है फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा कैन। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जिस तरह आप ख्याल रखते हैं कोई नहीं रख सकता। द वे यू केयर नो वन कैन। द वे यू केयर नो वन कैन। द वे मीन जिस तरह, यू केयर मीन आप ख्याल रखते हैं, नो वन कैन कोई नहीं रख सकता। बिल्कुल स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट किया अंग्रेजी जुबान में। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जिस तरह वो पढ़ाता है कोई नहीं पढ़ा सकता। द वे ही टीचस नो वन कैन। द वे ही टीचस नो वन कैन। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जिस तरह आप मुस्कुराते हो कोई नहीं मुस्कुरा सकता। द वे यू स्माइल नो बॉडी कैन। द वे यू स्माइल नो बॉडी कैन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और मिसालें देखते हैं। जिस तरह वो बोलता है कोई नहीं बोल सकता। द वे ही स्पीक्स नो बॉडी कैन। द वे ही स्पीक्स नो बॉडी कैन। द वे मीन जिस तरह ही, ये सब्जेक्ट है विच मीन वो स्पीक्स, ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। मेन वर्ब है विच मीन बोलना। नो बॉडी ये हमारा सब्जेक्ट है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जिस तरह वो पकाता है कोई नहीं पका सकता। द वे ही कुक्स नो वन कैन। द वे ही कुक्स नो वन कैन। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जिस तरह तुम खेलते हो कोई नहीं खेल सकता। द वे यू प्ले नो बॉडी कैन। द वे यू प्ले नो बॉडी कैन। आइए देखते हैं ऐसे जुमले जिसमें हमें कहना हो जिस तरह तुम बहस करते हो मुझे पसंद नहीं। जिस तरह वो बर्ताव करती है उसे पसंद नहीं। या जिस तरह तुम बोलते हो मुझे पसंद नहीं। ऐसे फैक्टरों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सो पहले हमें लगाना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें यूज करना है, अगर प्रेजेंट टेंस हो यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हमें यूज करना है डोंट या डजंट। डोंट ये प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई वी दे या प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। डजंट ये सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। इसके बाद आ जाया करेगा लाइक, और लाइक के बाद हमें यूज करना है द वे। द वे के बाद फिर हमें यूज करना है, लगाना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जिस तरह तुम बहस करते हो मुझे पसंद नहीं। आई डोंट लाइक द वे यू आर्ग्यू। आई डोंट लाइक द वे यू आर्ग्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जिस तरह तुम बोलते हो मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक द वे यू स्पीक। I don't like the way you speak. One more example for better understanding. जिस तरह वो कहता है मुझे पसंद नहीं। I don't like the way he eats. I don't like the way he eats. और आखिर में ये दो फकरात आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जिस तरह वो पकाती है कोई नहीं पका सकती। जिस तरह वो पकाती है कोई नहीं पका सकती। और दूसरा फकरा है जिस तरह तुम चलाते हो मुझे पसंद नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।